Hello and welcome to another episode of Candid Talks with Bharat V. This is Bharat Vatsa, your host of the show, and in today's episode, we will be talking to the man behind the entire narration of the Big Boss show. Yes, he is none other than Vijay Vikram Singh, aka VVS. He is an actor, an anchor, a voiceover professional, voice coach, sports presenter, a radio jockey, and whatnot. He is truly a multi talented personality. So let's welcome Vijay Vikram Singh. नमस्कार, मैं विजय विक्रम सिंह यानी वीवीएस और आप मुझे सुन रहे हैं कैंडिड टॉक्स विद भारत वीवर। So hi Vijay, Candid Talks with Bharat V के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Bharat. It's so nice to connect after so long, as we discussed around after 7 odd years. Yes. But doesn't look like that we're starting from, starting after so long, because we both look the same. You haven't lost anything. I haven't gained anything anywhere. So नहीं, it's just the perception. हालांकि बाल तो मेरे भी उड़ते जा रहे हैं, बट हाँ ऊपर से उड़ रहे हैं और यहाँ दाढ़ी बढ़ती जा रही है। नहीं, पर ऊपर से जो उड़ रहे हैं वो पता नहीं लग रहे हैं ना, तो मतलब please compare with apple with apples. So how are you doing? I mean, with this COVID-19 situation, how are you coping up? Do you have some assignments yet which we can, you can do from home, or you are just enjoying your vacation? So I have a studio set up at home, from where I can record and send. Okay. And since the lockdown started, which was around 22nd, 23rd March. Correct. After that, the work has been very, very sporadic, few and far between recordings that I've been doing. Right. For the simple reason that there's not much work happening at all. Who do I record for? Right. People are making very few ad films. There are no TV shows. My major work was TV reality shows. Right. So there's no fresh episode of any reality show that is being made, that is being shot. Mm-hmm. So there is no work. So on and off, I do keep getting, recordings here and there, which I count as my blessings. Because in these times, whatever little you can earn, it's a blessing. So, so coming back to your question, work has suffered, but it's understandable. It's for everyone, I guess. But I think family at least must be happy. At least you are able to spend some good quality time with them. At least. Family is very, very happy. And even I am very happy that I can spend time with the family. Absolutely. And, it's good in a way that you are able to connect, you are able to see day-to-day things. We tend to invest a lot in materialistic pleasures, but we never get chance to enjoy them. I know. So yeah, I hope this thing gets over soon and everyone is safe and sound at their house, at their homes. And hopefully we all will be able to get over it pretty soon. Okay. I hope so. I hope so, yes. Yeah. So moving on, Vijay, if you can, please tell our listeners something about yourself, who you are as a person, which place you belong to, and when exactly did you shift to Mumbai? So I am from Kanpur, Uttar Pradesh. It's a tier 2 city. And it once was the industrial city or industrial hub of Uttar Pradesh. It's slowly getting its sheen back now. There's a lot of industries that are again starting up, that had again started to come up before this COVID thing happened. So I don't know how many of them will be able to survive now. But so I come from there, and the shift to Mumbai happened in 2005. So I am an MBA in international business. Okay. And I was working with a import financing firm, and I was looking into import financing, and
high sea sale agreements. Now, these are very technical terms. But what basically I was doing was that we were importing raw material on behalf of a lot of companies. Okay. And then once the ship sailed from there, we would enter into a high sea sale agreement that once the ship lands, we will hand over the delivery to that particular company, okay, whosoever opens the LC in our favor. So that was what I was doing. Till the age of 29, there was nothing creative in me. There were no creative instincts. Till someone told me that I have a good voice and I can use it for a living. Okay. Then I started working on my voice. For 3 years, I worked on my voice while I was into a job. I changed jobs after that. I went into a media company, Big FM, which was owned by Reliance at that time. So, yeah, I went there. I was into ad sales. Okay. I was selling airtime. Okay. At the same time, also building contacts and understanding how voiceover works. Understand. Actually, that was my next question. As you said, you are an MBA professional, and you started your career as as a financial person, right? With one of the company. So how exactly did you shift from that job to the media, like as you just said? It's an interesting story. Because that company transferred me to Bombay. Exactly. That's how I came to Bombay. So when's the year? So I am a glaring example of how things happen when universe conspires in your favor into doing something. Okay. So the universe was conspiring that I had to do something different from what I was doing. And that was pretty much a bold step, actually. I mean, I'm sorry to interrupt in between, but doing a job, in with MBA, as a background in finance, and taking a jump altogether from MBA to a voice modulation, kind of an artist in media. I mean, it's totally poles apart. I mean, so it was pretty much probably courage, and it was a bold step, rather, I'll say. It was also ignorance. Sorry? It was also ignorance. So you finish, then I'll come back to it. No, I mean, just that is one of the things which I really admire, of you, because typically हम लोग सोचते रहते हैं, remember, मतलब ऐसे कई बार होता है कि काश हम वो कर लेते, काश हम ये कर लेते, और a typical incident I'll give you. Every day morning, I work in IT, as you know. Every day morning when I get up, I go to the washroom, and then I get ready for getting to go to office. दिमाग में हमेशा फिर वही ख्याल आता है, वो शीशे में जब देखते हैं अपने आप को कि यार आज फिर वही जॉब, फिर वही रूटीन, वही बोरिंग काम, फिर वही ऑफिस, वही सब तामझाम, काश कि मैं अपना पसंदीदा काम करता। तो वो एक दिमाग में वो ख्याल एवरी डे आई गेट, एवरी डे। और बीवी मेरे को जो है ना लात मार के ऑफिस भेजती है जैसे छोटे में स्कूल भेजने के लिए बच्चों को भेजते थे। जी 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 नहीं, देखिए, मैं आई डोंट एट्रीब्यूट ऑल दिस टू करेज एंड एनीथिंग एल्स. It was exuberance of youth. I was 29, not exactly young, but not old as well. So at that age, and not married, not having any responsibility, and ignorance. Now, ignorance is ki passion hai. Ignorance, when I say ignorance, why it helps is, if you are seasoned or if you have seen anyone's struggle, you have experienced it second hand, then that apprehension comes in कि अरे यार मेरे साथ भी अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा. पर ignorance है आपके अंदर कि 10 एक आदमी ने कहा कि आपकी आवाज अच्छी है, आप स्टूडियो में गए, उसने कहा कि देखो तुमने रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं करी पर आवाज अच्छी, इस पे काम करो. फिर आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गए, वहां भी उन्होंने कहा आपकी आवाज अच्छी. ऐसे करते करते 10 लोग आपको मिले जिन्होंने कहा आपकी आवाज अच्छी है, तो आप चढ़ गए चने के झाड़ पर, आप बहुत खुश हो गए. तो और आपने फिर और आपने कहा हाँ यार इसमें मजा भी आ रहा है, तो बाकी जो दुनियादारी, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं चीजों के, वो आपने इग्नोर कर दिया और आपने कहा नहीं मुझे यही काम करना है. लेकिन मैंने जो एक अच्छी चीज मेरे से हुई वो ये थी कि मैंने
उस एक्सुबरेंस में, उस एंथुसियाज्म में मैंने ये नहीं किया कि आई जस्ट जंप्ड शिप्स। किसी ने नौकरी छोड़ के स्ट्रगल करना चालू कर दिया। ओके। वो जो स्ट्रगल था उसको मैंने थोड़ा फेज्ड तरीके से किया, प्लान करके किया, कैलकुलेटेड रिस्क की। जॉब ही करी, लेकिन जॉब स्विच कर दी ऐसी जगह पर जहां पर मैं देख पाऊं कि कैसे काम होता है। ओके। और जहां तक रही फुल्ली इसमें घुसने की, तो उसका बहुत श्रेय गीतांजलि को जाता है, मेरी वाइफ को। वो गीतांजलि ने, मतलब मेरे अंदर तो कुलबुलाहट बहुत थी, ट्रेनिंग भी कर ली, 2 साल मीडिया कंपनी में काम भी कर लिया, आ भी गया, कॉन्ट्रैक्ट भी बन गए, सब कुछ हो गया। फिर मैंने अपना घर भी चेंज कर दिया, एक सस्ती जगह पे घर ले लिया, ये सोच के कि अब मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द नौकरी छोड़ूं। पर छूट नहीं रही थी नौकरी, वो जो आपके साथ है ना, वो हो नहीं रहा था। तो आपकी बीवी लात मार के आपको ऑफिस भेजती है, हमारी बीवी ने जो है, गीतांजलि ने हमको लात मार के इधर भेज दिया कि जाओ यार, तुमको ये करना है तो ये करो, और होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा। तो वो जो एक पुश है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, तब हमारी शादी हुई भी नहीं थी, मतलब हमारी शादी होने वाली थी 10 दिन बाद जब हमने ये डिसीजन लिया। Oh, so it was quite long back. I mean, okay, so that's nice to hear. 2009 I switched full time into voicing. Acha. Okay. So when you actually got into this, voiceover profession, did you ever face any criticism in your initial phase, wherein you had to do a lot of struggle? Because this is unlike the acting, profession. इसमें क्या है कि एक्टिंग तो चलो आपका फेस वैल्यू है, यू कैन सी इट इन फ्रंट ऑफ यू, बट हियर वॉइस इज, इट कांट बी सीन, इट इज जस्ट, इट कैन बी हर्ड। तो आपको शुरू में बहुत ऐसा स्ट्रगल या क्रिटिसिज्म कुछ मिला था शुरू में, ऐसा कुछ? एंड व्हाट मेड यू कीप गोइंग? बहुत ज्यादा होता था, बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है। देखिए, जब आप नए एंड किसी भी फील्ड में जब आप एंटर करते हैं, इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जैसे आईपीएल में आपको उठा के अंडर 16 क्रिकेट से सीधे आईपीएल खिलाने के लिए भेज दिया जाए। तो जब आप पहली गेंद, अगर आप बैट्समैन हो, पहली बॉल फेस करने जाओगे, तो बॉलर आपको अंडरआर्म नहीं खिलाएगा कि चलो बच्चा आया है, कोई बात नहीं, इसको अंडरआर्म खिला देते हैं। या जो टीम ओनर है वो ये नहीं सोचेगा कि चलो 5 मैच छोड़ देते हैं, छठे मैच से देखेंगे इसको। पहले मैच से ही आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह परफॉर्म करेंगे, एक्सेल करेंगे। तो ये किसी भी प्रोफेशन में सच होता है। तो आप रिकॉर्डिंग के लिए जब भी मैं जाता था, तो मुझको ये नहीं सोचते थे कि ये नया आदमी है, उनको अपनी डिलीवरी चाहिए कि भाई ये इस तरह से हमको ये आपका वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके मुझे इस अंदाज में आप रिकॉर्डिंग करके मुझे फाइनल आउटपुट दीजिए। जब अगर आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप नए हो, तो कई बार क्या होता है कि अगर पहला टेक सही नहीं जाता है, दूसरा टेक सही नहीं जाता है, आप बहुत नर्वस हो जाते हो। और फिर जब नर्वस हो जाते हो तो इट्स अ डाउनवर्ड ग्राफ, they can't get it right, come what may. तब आपको क्लाइंट्स के एक्सप्रेशन दिखने लगते हैं। स्टूडियो बूथ हालांकि साउंड प्रूफ होता है, जो क्लाइंट बाहर बैठा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, इंजीनियर, उनकी आवाजें अंदर नहीं आती हैं, एक टॉकबैक के जरिए आती है, बटन दबाता है और आपको उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। तो मोस्टली आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता, सिर्फ अपनी आवाज सुनाई दे रही होती है। तो सुनाई कुछ नहीं दे रहा, पर आपको दिख रहा है, चेहरे पे उनके फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। और मेरे साथ कई रिकॉर्डिंग में ऐसा हुआ शुरुआत में, जब एक क्लाइंट का मुझे आज भी याद है, भैया इसको दोबारा मत बुलाना। अच्छा। हाँ, अच्छे से याद है। वो एड मैं भूल गया, बहुत ही फेमस एड था, उसको रिकॉर्ड करने गया था। क्या है, कहाँ से ले आते हो तुम लोग, पैसे बचाने के लिए क्या कर रहे हो? तो वो टॉकबैक ऑन रह गया, तो मुझे सब सुनाई दे रहा था। So did it, ever demoralized you, and or did you take that as a challenge कि नहीं, अब तो मैं इसको करके दिखाऊंगा, ऐसा कुछ? फिल्मों की तरह जैसे होता है ना कि गिर गए और फिर कर हर मैदान फतेह, उठे और कहा कि अब मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। पता नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब वो डिमोरलाइजेशन रहता था। तो क्या होता है कि जब कोई काम मिल जाता है, कोई काम सक्सेसफुल, फ्रूटफुल हो जाता है, फ्रूटफुल काम मिल जाता है, बेसिकली पैसे आने लगते हैं, तो आप पिछली नाकामियां भूलने लगते हैं। फिर एक नाकामी आती है, फिर 2 चेक आ जाते हैं, तो पिछली नाकामी भूल जाते हैं। तो देखिए, ये कभी नहीं मेरे जहन में आया कि मैं इसको साले को भी बताता हूँ, मैं अभी 5 साल बाद ऐसा करूंगा। ऐसे थॉट्स पता नहीं कभी आए भी होंगे, तो अभी
नेगेटिव थॉट्स के साथ सबसे मजेदार चीज ये होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कि अगर भरत ने मेरे साथ कुछ किया और मैंने ठान ली कि अब मैं भरत को प्रूव करके दिखाऊंगा, तो जब 4 साल बाद जब मैं वो स्ट्रगल करके वहां पहुंचता हूँ जहां मैं भरत को प्रूव करके दिखा सकूं, तो एक्चुअली वो स्ट्रगल जो है मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी हटा देगा। राइट। मैं उस 4 साल बाद मैं सोचूंगा मैं क्यों इसके ऊपर भड़क रहा था। ओके। तो आज की डेट में मुझे कुछ ऐसा याद नहीं कि जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैंने कहा मैं देख लूंगा साले को भी हो जाए। ओके। ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ देखिए वो डिमोरलाइजिंग होता है और आप बैठते हो थोड़ी देर सोचते हो, आप अपने आप को सवाल करते हो, you question your own skills. These things happen. These are part and parcel of the game. Right. So you have to slowly start to accept them. The more acceptance you get for these things, the more you can progress in this space. अगर आपने वो चीजें दिल पे लगा ली ना, वो नेगेटिविटी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। Right. Okay, so moving on. नमस्कार, मैं विजय विक्रम सिंह यानी वीवीएस और आप मुझे सुन रहे हैं कैंडिड टॉक्स विद भारत वीवर। The big question now. So how did you land up this assignment, with Big Boss? And when exactly was this? In which year? So 2009, as I said, I started doing this full time. Right. नौकरी छोड़ के, और 2010 के अगस्त में ये आया कि भाई वो बिग बॉस में नरेटर्स वॉइस जो है उसके लिए भी ऑडिशन कर रहे हैं हम लोग। अपने आप की वो भेजिए क्या काम किया है और सीडीज कुछ भेजिए। तो हमने सीडी भेजी, उसके 1 महीने बाद मैं वो आ गया कि आइए ऑडिशन करेंगे आपका। ऑडिशन हुआ, फिर हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अक्टूबर 2010, अच्छा, 2 October 2010 was the first episode of Big Boss season 4, which was my first season with Big you Boss. Started from season 4. 10. 2010, okay. So from season 4 I've been associated, और अब 2 season 13 हो गया, 10 season कर डाले हमने। Wow. So is it true that you will be heard in many more upcoming seasons of Big Boss in future? Can we say that you are the permanent voice of Big Boss narration? हर सीजन के बाद हमको ये लगता है कि पता नहीं अगले सीजन में बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। अच्छा, तो वो हर साल वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, तो 10 साल तक बुलाए, अब इस साल देखते हैं क्या होता है। Okay, hopefully so it is on an annual basis and gets renewed. Okay. Yes. Okay. So do you have to stay there in the on the sets for the entire duration? कितने महीने का ये शो शूटिंग होती होगी? पहले लोनावला में होता था तो 3.5 महीना वहां रहना पड़ता था लोनावला में। Okay, continuously you have to stay there. हाँ, सेट पे नहीं, लोनावला में ही रहते थे, मतलब विसिनिटी की, भाई जब जरूरत पड़े तो आ गए। Okay. मेरा तो फिक्स काम रहता है, तो 7-8 घंटे में सेट पे जाता हूँ। Okay. तो अभी भी जब बॉम्बे में भी हुआ तो भी 6-7-8 घंटे में जाता था सेट पर। Okay. और बाकी टाइम में दूसरे काम कर लेता था। अच्छा, okay. So any idea when is the next season of Big Boss coming up? I have no clue. कोई मतलब कोई बातचीत ही नहीं है इस समय। Okay. क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तक तो पता ही नहीं है कि कब शूट शुरू होगा। जो मेरे पेंडिंग रियलिटी शोज हैं जो मैं कर रहा था, जिस समय लॉकडाउन अनाउंस हुआ, मैं उस समय 3 रियलिटी शोज कर रहा था, फीयर फैक्टर, सारेगामापा लिटिल चैंप्स और इंडियाज बेस्ट डांसर। अच्छा उसमें भी आप ओके जी। तो ये शोज, मतलब ये उस समय ये सारे शोज ऐसे थे कि कोई किसी का 8वां एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, किसी का 6ठा, किसी का 10वां, और उसके बाद रोकना पड़ा। So you were the host of that show, or you were again giving the voice which introduces you to the contestants, the voice which introduces you to the episode कि आज ये देखेंगे वो देखेंगे। Okay. फिर वो
कल क्या देखने वाले हैं हम लोग। और अगर कोई बीच में, जैसे डांस शोज में कई बार एक्ट में कहानियां होती, हाँ, तो कहानी नरेट ओके, करना, कहानी नरेशन, तो ओके, जी, ओके, तो वो शोज का पता नहीं है जो कि चल रहे थे, चलते हुए रुक गए, उनका पता नहीं है कि कब शुरू हो पाएंगे। ओके, तो ये तो इसका तो कोई खैर, ये तो बहुत दूर है अभी, दिस इज pretty far off, pretty too ओके, early to actually say. ओके। बिग बॉस में विजय भाई, यू नो, दो मेन आवाजें हैं, राइट? आई जी जी मीन, उसके बारे में कुछ खुलासा करना चाहेंगे आप? क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग अक्सर ये सोचते हैं, और ये एक मिसकंसेप्शन है कि ओवरऑल बिग बॉस की सिर्फ एक ही आवाज है, बट अगर आप कुछ खुलासा करें हमारे लिसनर्स के लिए, हु नहीं, विच ये ऑल, तो यू नो। सब जानते हैं कि जैसे एक एक नरेटर्स वॉइस है जो मैं हूँ, जो ऑडियंस से बात करता है, राइट, और एक वॉइस है जो कंटेस्टेंट्स, एक्सक्लूसिवली कंटेस्टेंट्स से उनसे बातचीत करना, ऑर्डर्स देना, जो एक्चुअल टास्क देना, बिग बॉस के टास्क वगैरह जो कह सकते हैं। डेलीगेट करते या हैं। या ओके, या ओके, यस यस यस। ओके, So ओके। yeah, we are the two people who are involved. तो एक छोटी सी एक दो लाइनें कुछ हो जाए हमारे लिसनर्स के जी लिए, जी, श्योर श्योर श्योर। बिग बॉस का शाम कोई भी एपिसोड 7 का। बजे, शाम 7 बजे कैंडिड टॉक्स विद भारत में विजय विक्रम सिंह भारत के साथ बात कर रहे हैं, आगे देखिए। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। ओके, uh, you know, there is a speculation, ये जो बिग बॉस के स्क्रीन पे जो दिखता है, whatever the contestants say or whatever they do, that it is, all scripted. Can you please clarify if it is actually really scripted, or whatever is being seen on the screen, that is not real? So what do you have to say about this show format? See, uh, as someone associated with the show, obviously I cannot talk too much because we are Right. contractually Yeah, bound. I understand. But the fact is that it's a reality show, and reality show in true sense. Why people think कि ये ऐसा क्यों दिख रहा है, या हो सकता है ये प्री प्लान्ड हो, वो इसलिए लगता है लोगों को क्योंकि आप 24 घंटे की चीज एक 45 मिनट के कैप्सूल टाइप के छोटे से 45 मिनट्स में आपको हमें 24 घंटे का सब दिखाना पड़ता है। Right, right. So it has to be edited. Correct. When things get edited, there are times when you might feel अरे ये कैसे होगा, ये कहीं ऐसा तो नहीं, ये real नहीं है, but Yeah. it is 100% real. It's an international format which is successful in so many countries. Big Brother, it is Big Brother basically. India में खाली उसका नाम change किया हुआ है, Big Boss कर दिया है. Right. So it's an international format, and it's a beautiful concept, and it's a beautiful study in actually human behavior. So it's 100% original, 100% non-scripted, 100% real. Okay. So after the show is over, the entire season is over, and तो पार्टिसिपेंट्स जो कंटेस्टेंट्स एंटायर सीजन में जो उन्होंने कैसे बिहेव किया, किस तरीके से उन्होंने दे प्लेड द शो द एंटायर सीजन, उनसे उनकी क्लिपिंग्स और उनका जो एंटायर रिकॉर्डिंग जो भी है सीजन की, वो शेयर करी जाती है, या और उनके साथ कुछ डिस्कशन किया जाता है आफ्टर द एंड ऑफ द सीजन, दैट दिस इज हाउ योर परफॉर्मेंस हैव बीन? No, not really, not really. Everybody does their own evaluation. वो तो उनको इंटरनेट पे मिल जाती हैं चीजें, तो फिर लोग जाके थे। आजकल तो सब अवेलेबल है ना, वूट वगैरह पे सब मिल जाते हैं पुराने एपिसोड्स। बट उनको No, during the there's no during the play, I'm assuming that they do not, they cannot see, right, until the entire season is over. No. Okay, okay. विजय भाई, कभी ऐसा हुआ है कि बिग बॉस के लहजे में आपके घर पे भी वार्तालाप होती हो आपकी वाइफ के साथ, बच्चे के साथ? बच्चे के साथ होती नहीं वार्तालाप। बच्चा जो है वो, so she's 5 years old now. Okay. So she What is picks her up. name?
Suranjali, we call her Gauri at home, but her name is Suranjali. तो वो जो है पिकअप कर लेती हैं. अच्छा. तो कभी बैठे बैठे मतलब she recognizes, अभी भी एक आध कभी प्रोमो कोई बजता है, कोई एड बजता है, तो she says पापा पापा आपकी आवाज आ गई. And she calls out, कहीं भी मैं हूँ बुलाओ पापा आपकी आवाज आ गई, पापा पापा. Okay. And she imitates me. दोपहर 12 बजे आगे देखिए. एक दिन बैठा हुआ था तो मैं ऐसे हाँ कभी कभी ऐसे कॉन्वर्सेशन में मजाक में कुछ बोल देता हूँ, आगे देखिए. तो वो एक दिन बोलती है कि क्या देखूं. I recorded that actually and put it on Facebook also. So yeah, so they are impressionable minds. They definitely catch these things. घर पे बीवी से तो कोई कभी हिम्मत नहीं पड़ती कि बात करें इस तरह से. So वाइफ के साथ कभी नोक झोंक में भी ऐसा कभी कुछ? अरे सवाल ही नहीं. घर पे रहना है सर. Okay. So कोई ऐसा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते हो इन फ्यूचर? देखिए अभी तो ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत कभी सोचा हो. जैसे एक कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो आपको लगता है ये कहानी अगर मैं नरेट करूं तो आजकल ऑडियो बुक फॉर्मेट आ गया है, तो वो भी एक आपकी ख्वाहिश पूरी होती रहती है. और अभी लॉकडाउन में मैंने डॉक्टर राही मासूम रजा की एक किताब है नीम का पेड़, जिसपे एक सीरियल भी बना था 80s में. वो मैंने एज एन ऑडियो बुक रिकॉर्ड करी और वो रिकॉर्ड करके इतना मजा आया, इतना सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि कहानी खूबसूरत, किरदार इतने बेहतरीन, बोलचाल का लहजा जो था वो हमारे यूपी का ही था उसमें जो कैरेक्टर्स ने यूज किया है. अच्छा. वो करने में तो वो फीडबैक जो आया मेरे पास, जो क्यूसी करता है, क्वालिटी कंट्रोल करता है, देखता है कि हाँ भाई सब ठीक है कि नहीं ऑडियो में, उनका फीडबैक आया कि भैया मतलब मुझे सुनने में इतना मजा आ रहा था कि अब देर मत करिए, बाकी फाइल्स भी जल्दी जल्दी भेजते रहिए. So is it all completed now? It's completed. It will be out soon on Storytel. Okay. Storytel. And is it by the same name? It is by the same name. Okay. Definitely will look forward to it. शाम 6 बजे भारत ने सभी लिसनर्स को ये आदेश दिया कि वो कैंडिड टॉक्स विद भारत बी के सभी एपिसोड्स को जरूर सुनें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. ये एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट चैनल है और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सारे एपिसोड्स को फॉलो और लाइक करें. So this brings us to the end of part 1 of the episode. पर बातों का सिलसिला जारी रहेगा अगले एपिसोड में with Vijay Vikram Singh, man behind the narrator's voice of Big Boss. We will continue our discussions with Vijay Vikram Singh on our next episode of Candid Talks with Bharat V. Stay home, stay safe, and stay tuned for the upcoming episode part 2. दुआओं में याद रखना. जय हिंद.